Hello everyone, I hope you all are doing good. In today's session, we are going to discuss metaphysical poets. Now, who were metaphysical poets? Metaphysical poets were the poets who were writing during the 17th century. Basically, they were writing during the Caroline period. Okay, so let's have a look at metaphysical poets. So here we see metaphysical poets, students. We see that they were writing during the Caroline period. Okay, after the Jacobean age we had Caroline period, जिसका timeline अगर हम देखें, okay, if we see the timeline of Caroline period, it was from 1625 to 1642, okay, till Civil War, and we see during this time Charles the First was ruling and he did not let the parliament meet for 11 long years, so he was executed in 1649 when the civil war started in 1642. Okay, I hope this is clear. This is the background of metaphysical poets. So during the Caroline period we had two major groups of poets. First was Cavalier poets and the second were metaphysical poets. Cavalier poets were known as royalists, जो चार्ल्स द फर्स्ट को बहुत सपोर्ट करते थे, ओके, मोनार्की को सपोर्ट करते थे. एंड मेटाफिजिकल पोएट्स वी सी दैट दीज वर द पोएट्स who were writing in complex language. Here meta refers to after the physical, okay, after the physical. That's why we will see that they were talking about spirituality, they were talking about platonic love. इनके मेंबर्स को भी हम एक निमोनिक से, निमोनिक जिसको हम एक तरीके से ट्रिक कह सकते हैं, उससे याद करेंगे. एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि ये हमारे मेजर पोएट्स हैं. So after the physical, okay, meta refers to after the physical. तो platonic love, spirituality की बात कर रहे थे ये लोग. And we will see that they were using complex language, okay, paradox, right, conceits in their language, okay. And we see that the famous member, okay, of metaphysical poet John Donne, he has written this famous work Valediction, Forbidden Mourning, and in that particular work he is talking about the physical distance between the two lovers and he is comparing that physical distance with a compass. Just like the two strands of compass, if the one will stay firm and bold, then the beautiful circle will be drawn. Just like that, if they are connected to each other, their love is going to flourish. So they were using such comparisons, okay, they were using imagery, different metaphors, okay, we see they were using different metaphors, imageries, okay, that's why they were known as metaphysical poets. अगर हम देखें metaphysical poets में, metaphysical poets, okay, this particular term basically was coined by सैमुअल जॉनसन, ओके, जो सैमुअल जॉनसन है उन्होंने अपने वर्क लाइव्स ऑफ द पोएट्स, ओके, इट वाज पब्लिश्ड इन 1779, उसमें ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसको कॉइन किया था एंड इट वाज अ डेरोगेटरी रिमार्क. डेरोगेटरी का मतलब होता है नेगेटिव रिमार्क. और जो हमारे जॉन ड्राइडन है जिनको हमने रेस्टोरेशन एज में पढ़ा है, ओके, रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड रेस्टोरेशन एज, तो रेस्टोरेशन एज में इन्होंने बोला था डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ओके, दिस वाज आल्सो अ डेरोगेटरी रिमार्क, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स. सो वी सी दैट मेटाफिजिकल पोएट्स डिड नॉट गेट देयर रिकॉग्निशन ड्यूरिंग दिस टाइम, उनको उनका रिकॉग्निशन नहीं मिला था. इट वाज ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, ओके, मॉडर्न एज में हम देखेंगे that T.S. Eliot, okay, he is a famous modern age writer जिन्होंने Wasteland भी लिखा है. It was T.S. Eliot who wrote this essay, okay, who wrote this essay Metaphysical Poets, and he gave the concept of unification of sensibility and dissociation of sensibility, and there they said that metaphysical poets were all good using the metaphors, imagery, complex language, paradox, okay, and conceits, right. So now if we talk about metaphysical
poets, so we see that a group of 17th century, okay, ड्राइडन ने ये वर्ड यूज किया था, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। और यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने जो सैमुअल जॉनसन है, मोस्ट प्रोमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, ओके, उसमें जो इस वर्क में उन्होंने इस पूरे टर्म को यूज किया था सबसे पहले, ओके। मेटा मीन्स आफ्टर द फिजिकल, इसीलिए हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, प्लेटोनिक लव के बारे में बात कर रहे थे ये लोग, यस, प्लेटोनिक लव, रिलीजन, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। हम देख रहे हैं कुछ वीक कंपैरिजंस, जैसे कि मैंने आपको कंपस का एग्जांपल दिया, जस्ट लाइक ही आल्सो टुक द एग्जांपल ऑफ गोल्ड, जस्ट लाइक गोल्ड को आप कितना भी बीट करो इट फ्लैटन्स, ओके, just like he was comparing the love between the two lovers, that it is like gold, no matter how much it breaks, it is not going to break, okay, yes, how much it is pressed, it is not going to break। अगर हम इनके members की बात करें तो हम इसको एक, मैंने छोटा सा कोशिश किया है ये निमोनिक ट्रिक बनाने का, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। अगर आपको नॉर्मल मेंबर्स याद करने हैं तो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बट इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ इजियर। तो हम याद करेंगे Done won her absolute marvelous car, Done John Donne, won Henry Vaughan, her George Herbert, absolute, with absolute we have Abraham Cowley, marvelous we have Andrew Marvell, Andrew Marvell has written this famous work to his poem Mistress, and then here we see car with Richard Crashaw, okay, so this is how we are going to learn the members of this particular group, okay। Done won her absolute marvelous car, okay, this was the mnemonic which I tried to make so that you can understand। One more is there, daring hearts, okay, daring hearts, value, marvelous, okay, clever concepts, इसको भी आप देख सकते हो, this one is a bit easier, okay, ये थोड़ा ज़्यादा easy है तो आप इसको रेफर कर सकते हैं यहाँ पे, okay। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस पोएट्री कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ विट, यूज करते हैं, ओके, विटी लैंग्वेज यूज करते हैं, इलेबोरेट लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, वैलिडेशन, फॉरबिडन मॉर्निंग का मैंने एग्जाम्पल भी दिया, फिजिकल लव बिटवीन टू लवर्स को टू स्टैंड्स ऑफ कंपस से डिनोट किया, ओके, और टी.एस. एलियट ने इनको मॉडर्न एज में इनका जो ड्यू रिकग्निशन है वो इनको दिया था, ओके। इसी तरीके से पढ़ने के लिए, आसानी से कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और एक मेंबर्स को याद करने के लिए, ओके, साथ के साथ आप हमारी जो लाइव क्लासेस हैं यूट्यूब पे उनको रेफर कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में डेली मेरी लाइव क्लासेस आती हैं अराउंड 8:35 इन द मॉर्निंग, और सुबह का 1 घंटा हम पढ़ लेते हैं तो पूरा जो दिन है हमारा, ओके, सुबह का 1 आवर प्रोडक्टिव जाता है, सो वी फील गुड द एंटायर डे, एंड एंटायर डे ऑल्सो यू कैन प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली। इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, उसका जो ऑफर है आप सभी के लिए वो आ गया है और इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप डिटेल में ये सारे सेक्शंस पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, जो क्वेश्चंस हमने देखे थे एग्जाम में, आप अगर इनको रेफर करना चाहते हैं, ओके, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हर एक टॉपिक के आपको नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी जिस तरीके से यूट्यूब पे होती है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो आप इस ऑफर का जो है बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो है एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, ओके, अप टू 500 आपको कैशबैक भी मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी कम जो है फीस में आपको इस कोर्स का बेनिफिट मिल रहा है। तो हमारे जो कोर्स है, ओके, यहाँ पर आप देखोगे कि जो ओरिजिनल प्राइस है और जो अब आपको प्राइस मिल रहे हैं, ओके, इनको आप अवेल कर सकते हैं इनका बेनिफिट, क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए है, ओके, इंडिपेंडेंस तक के लिए, इंडिपेंडेंस डे तक के लिए, एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट, ओके, बाय डाउनलोडिंग द उत्कर्ष ऐप। यूजीसी नेट ऐप सेक्शन में जाओगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज वहां पर दे दिए जाएंगे, यस, ओके। सो हियर वी सी, जो आप कोड यहाँ पर यूज करेंगे वो करेंगे NG, ओके, 13 आप कोड यूज कर सकते हैं, और इसी के साथ आपको जो है यहाँ पर इसका जो बेनिफिट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। एक्स्ट्रा 13% तक का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है, ओके, और इसको जो है आप यहाँ से इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं हमारे साथ जुड़ के, टाइमली जुड़ के, क्योंकि बाकी बच्चों ने तैयारी शुरू कर दी है ना, उन्होंने इसका बेनिफिट ले लिया है और वो क्लासेस में आ चुके हैं, है ना, उन्होंने अपनी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट भी कर दी है, वो क्लासेस ले रहे हैं, और हमारा 2.0 बैच भी लॉन्च होने वाला है 19 अगस्त को। सो टाइमली जितना आप ज्वाइन करेंगे हमारे बैच में, उतना ही ज़्यादा जो है आपको दिसंबर 2025 के लिए
बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लास्ट में तो सारे ही स्टूडेंट्स आ जाएंगे, है ना। अभी से जो तैयारी करेंगे डिटेल में, एक सही स्ट्रैटेजी से, एक सही सोर्स से, उन्हीं को जो है आगे सफलता जो है वो मिलेगी। ओके, और बिल्कुल मिलेगी जब हम मेहनत से तैयारी करेंगे। यस, so on that note, thank you so much everyone. I hope you enjoyed the lecture. I hope you're solving the questions. Okay, make your notes. Thank you so much. We'll meet tomorrow and stay tuned.